system पे, those kind of attacks are the intentional attacks and those are the active attacks. लेकिन ऐसे जो होते हैं जो हमारी वजह से हमारे सिस्टम पे अटैक होता है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में भी देखा है, अगर आपने आपका सिस्टम अपडेट नहीं किया है अच्छे से, उसके जो सिक्योरिटी पैचेस होते हैं या आपने जो एंटीवायरस डलवाया है उसको अगर आपने अपडेट नहीं किया है, अपग्रेड नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर यू आर यूजिंग इंटरनेट और wherever you are accessing network and wait a minute. ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो जब हमारे यहाँ पे मतलब हमने अपडेट्स नहीं किए हैं, हमने सिस्टम अपग्रेड नहीं किया है, हमने एंटीवायरस अपडेट नहीं किया है, इसकी वजह से व्हेनेवर वी आर सर्फिंग द नेट और व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग एनी टास्क in the network, that time when some viruses and some malwares are attacking on my system, that will be the kind of unintentional and passive attack, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अटैक। लेकिन जहाँ पे आपके सिस्टम में अपग्रेडेशन भी है, सब कुछ है, एनीथिंग यू हैव इन योर सिस्टम, but still some hacker is trying to access your data to perform some misbehavior with your data, then that kind of attack is the active attack and it is the intentional attack. तो एक्टिव अटैक कैसे होता है? सपोज वी हैव टू पर्सन्स विद अस, एलिस एंड बॉब। सो व्हेनेवर एलिस इज सेंडिंग सम मैसेज, एनी प्लेन टेक्स्ट टू द बॉब, in active attack what will happen? The third person, the attacker, will modify the message sent by the Alice in between, and that modified content he will then transfer to the Bob. So whatever actual content was sent by Alice will not never reach at the destination to the Bob. Bob will receive some modification information which is not sent by Alice, it is actually sent by the attacker, by the dog. So many of the times we have seen in movies that this kind of attacks happens which leads to the crimes. देखा होगा आपने ऐसे, देखा है ना? Am I audible, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so whenever two persons are communicating with each other, आपने ये CN में भी पढ़ा होगा, when two persons are communicating with each other and by that time the information which is to be sent by the sender is accessed by the third party. That third party makes changes in that data, it modifies the content and send that message to the destination, which is not actually the content sent by the sender. तो ये जो अटैक है इसको बोलते हैं एक्टिव अटैक, which is intentional attack where attacker tries to mislead the destination person. तो ये हो गया एक्टिव अटैक। एंड पैसिव अटैक इज व्हाट? Alice and Bob are communicating over internet. Alice is sending some messages to the Bob and Bob also in replying something back to Alice. At that time, whatever message has been sent and received in this network, this content has been read by some party. Now, what is the use of this reading and how this third party will use this information? They may be communicating any kind of private data, any kind of confidential data. Maybe they are sharing their bank details, their account details, their login information, and that login information or the credentials may be used by this third person to access the data, to access the accounts, which leads to the crime, which is the again intentional attack, but
पैसिव अटैक, जहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता, बस वो डेटा ऑब्जर्व होता है, हैक होता है और उसको कहीं पे तो भी यूज किया जाता है। बट एक्टिव अटैक में क्या होता है, जो मैसेजेस, जो कन्वर्सेशन हम करते हैं, जो डेटा ट्रांसमिशन हम करते हैं, वो डेटा ट्रांसमिशन से रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है एंड वो मॉडिफाइड कंटेंट बोट के तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। तो अटैक इज एन इंटेंशनल और अनइंटेंशनल act which causes damage to our system, damage to our information. Attack is having of two types, active and passive attack. The next concept is exploit. तो exploit क्या होता है? We are having many kinds of server. अभी यहाँ पे जो भी ऑनलाइन जॉब्स चल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, कंपनी के सर्वर को एक्सेस है, कंपनी का नेटवर्क का सर्वर होता है, डेटाबेस का सर्वर होता है। तो ये सब जो सर्वर है उसमें हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा, प्राइवेट डेटा स्टोर होता है। whenever we are needing that particular thing, whenever we are requiring that information, what we are doing, we are using the usernames and passwords to access the data. We are processing that data and we are preserving, we are storing our results back to the server. Okay, so whatever confidential information we have on our server, when that data of the server get compromised, and that technique of compromising the system, the technique of compromising the servers is nothing but exploit. A technique used to compromise any system. The threat agent attempts to exploit the system or other information assets by using it illegally for their personal gain. जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन है, both were working on the same topic, both were creating, developing same kind of software, same functionality is given by both of them. जैसे मोबाइल बैंकिंग के ऐप्स होते हैं हमारे पास, हर एक बैंक के, तो हर एक बैंक के जो ऐप्स होते हैं, वो ऐप्स में बहुत तरह के ऑपरेशंस दिए होते हैं कि यू कैन चेक योर मिनी स्टेटमेंट ऑनलाइन, यू कैन ट्रांसफर मनी ऑनलाइन, you can pay your bills online. And it is not every time that same software designing, same software development company is डेवलपिंग द एप्स फॉर एवरी अदर बैंक सिस्टम। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो बैंक के लिए एप्लीकेशंस प्रिपेयर करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी का डेटा, अगर एक कंपनी का डेटा दूसरे कंपनी ने हैक कर लिया है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, तो दैट इज द टास्क ऑफ एक्सप्लॉइट। एंड हु डन दिस एक्सप्लॉइट ऑफ अ सिस्टम, तो उसे बोलते हैं थ्रेट एजेंट। तो जहाँ पे अटैकर एक ऑटोमेटेड सिस्टम यूज करके सर्वर के पासवर्ड एक्सेस करता है, यूज करता है और सर्वर का डेटा हैक करता है फॉर देयर पर्सनल गेन यूजिंग इट इलीगली, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉइट। What's the time, Vaishnavi? Next is exposure. Exposure is what? It is a condition or a state of being exposed. In the information security, exposure exists when a vulnerability known to the attacker is present. हमारे सिस्टम में क्या वल्नरेबिलिटी है, हमारे सॉफ्टवेयर में क्या पिटफॉल्स है, हमारे इसमें क्या क्या ऐसे डिफरेंट वेज है जिसको यूज करके सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है, ये अगर अटैकर को पता है, तो दैट कंडीशन, दैट स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोजर इज एक्सपोज्ड इज नथिंग बट एक्सपोजर। जैसे हमारे कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, all those workers are not working in the profit of organization. Some are there which are also part of other companies, and they may have access to our servers, our systems, so they can illegally access our systems, access our data, use our data, and process it, transfer it to some other companies.
तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो एक्सपोज हो रहा है एंड दैट स्टेट एंड दैट कंडीशन ऑफ बीइंग एक्सपोज इज नथिंग बट एक्सपोजर. The next concept we are having in information security is loss. What loss is? It is any instance of an information asset suffering damage. जहाँ पे हमारे जो assets है, हमने assets क्या है देखा है, तो physical और logical resources you have with your company, like whatever softwares you have, whatever website you have, ये हो गए आपके logical assets. और else whatever your organization की building जो है आपकी, आपके पास जो workers काम कर रहे हैं वो आपके physical assets है. तो whatever logical or physical assets you have with your system, and those assets when suffers get faced to the damage, उसको हम बोलते हैं loss. तो it is any instance of wet थर्ड पार्टी बिटवीन आर ऑर्गेनाइजेशन एंड आवर क्लाइंट्स. तो वो जो थर्ड पार्टी जब हमारा डेटा एक्सेस करेगी, उसे मॉडिफाई करेगी और यूज़ करेगी किसी अदर पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो लॉस होगा. या फिर हमारी ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ अगर हमारा डेटा यूज़ करके कोई मिसचिवियस या मिसलीडिंग कन्वर्सेशन या मिसलीडिंग इवेंट्स में हमारा डेटा यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ अगेन लॉस टू द company. And the last point from this security concepts is protection profile और security posture. तो हमने देखा था controls, safeguards and control measures we have seen. तो जहाँ पे हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं, पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं, प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारे कंपनी की रिस्क कम हो जाएगी, जिससे हम वल्नरेबिलिटीज रिजॉल्व करेंगे, या जो भी अटैक्स हमारे ऊपर आएंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आएंगे, उसको हम डिफेंड कर सकेंगे. इसके लिए हम जो कंट्रोल्स लेते हैं, जो सेफगार्ड्स हम यूज़ करते हैं, जो काउंटर मेजर्स हम यूज़ करते हैं, इन टोटल ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्शन प्रोफाइल और अ सिक्योरिटी पोस्चर. तो हर एक कंपनी की जो प्रोटेक्शन प्रोफाइल होती है, मतलब उनका एंटायर सेट ऑफ यूजिंग सेफगार्ड्स, ऑफ यूजिंग कंट्रोल्स, इंक्लूडिंग देयर पॉलिसी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजीज, जिसे ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती है उनके असेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो हर एक कंपनी के पास कुछ प्रोसीजर्स होती है, उनका एक प्रोटेक्शन प्रोफाइल होता है कि आपके कंपनी के बाहर कितने गार्ड्स होने चाहिए, आपका जो सर्वर है उनको किस लेवल की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी है, आपके पास जो वर्कर्स है जो टेस्टिंग पार्ट में होंगे, जो बिजनेस एनालिस्ट पार्ट में होंगे, जो कोडिंग पार्ट में होंगे, जो सपोर्ट में होंगे, उनको किस लेवल की आपको एक्सेस राइट्स देनी है, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन देना है, इन सब की एक पॉलिसी होती है. एंड दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट द प्रोटेक्शन प्रोफाइल और सिक्योरिटी पोस्चर. और ये जो प्रोटेक्शन प्रोफाइल है, ये जो सिक्योरिटी पोस्चर है, इसे इम्प्लीमेंट करने में अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, then we are protecting our assets very well. And if we are fail to implement that protection profile, that security posture, then we are failed to protect our assets. So इसे बोलते हैं protection profile. So any doubt up till now, whatever key concepts we have seen related to the security, information security, कुछ doubt है इसमें? Now we'll see them one by one. So tell me what is subject and what is object.
Ritesh, what is subject? Ma'am, any active entity that requires access to an object. Yes, and what is object? Ma'am, it is the entity which is used by the subject. Means if you consider subject will be a person and the computer and other requirements will be its object. Yes. Next we have assets. So roll number 74, Priyanka, what is assets? Assets are resources of particular organization or a company, we can say. Yes, they may be logical, they may be physical. Risk. Roll number 53, what is a risk? Risk is an unwanted situation that organized doesn't want Yes. to happen. Yes, they may be natural और they may be man-made. जैसे नेचुरल में हमारे पास फ्लड्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं और मैन मेड में अगर हमारे ऑफिस के पास सिक्योरिटी गार्ड्स ही नहीं है या हमारे पास जो सिस्टम्स है जो मशीन्स है उसमें पासवर्ड ही नहीं है कुछ लॉगिन आईडी वाले क्रेडेंशियल्स ही नहीं है तो वहाँ पे जो है वी आर हैविंग रिस्क ऑफ लॉसिंग अवर डेटा. Next, control, safeguards and countermeasures. Rule number 5. Krishnakant, are you there in class? Yes, he left the meeting. So, roll number 18. Manali, Yes, ma'am. what are the controls, safeguards and countermeasures? Just now we have discussed it. What they are? Anyone else? बोलो जल्दी. किसी को नहीं पता? The preventive measures which we take to avoid risk or threat is what control, safeguard or control measure. Yes. So उसके बाद हो गया vulnerability. आपके सिस्टम में या आपके एप्लीकेशन में जो भी पिटफॉल्स है उसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटी. थ्रेट्स मतलब आपके सिस्टम पे, आपके मशीन पे, आपके असेट्स पे जो भी अनवांटेड अटैक्स होते हैं, दोज आर द थ्रेट्स एंड दोज हु आर कंडक्टिंग दैट थ्रेट आर द थ्रेट एजेंट्स. अटैक्स, intentional or unintentional activity happens to the organization. There are of two kinds, active and passive. Exploit मतलब हमारा जो डेटा है उसे जब हैक किया जाता है, उसे जब मॉडिफाई किया जाता है, दैट इज एक्सप्लॉइट. एक्सपोजर, द स्टेट ऑफ बीइंग योर इंफॉर्मेशन एक्सपोज्ड टू समवन. Loss, whenever we are losing our information, we are losing our privacy, that is loss. Protection profile, the overall collection of control, safeguards and countermeasures is nothing but protection profile and security posture. Right. Next, the next point in the fourth unit is security attack. Whatever concept we have seen, security attack, we
जिसके दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ इन डिटेल कि एक्टिव अटैक्स में कौन से एग्जांपल्स आते हैं और पैसिव अटैक्स में कौन से मोड्स आते हैं। तो फर्स्ट विल सी एक्टिव अटैक क्या होता है। तो एक्टिव अटैक इज एन अटेम्प्ट टू अल्टर सिस्टम रिसोर्सेस। एक्टिव अटैक में आपके जो सिस्टम के रिसोर्सेस है वो फिजिकल हो गए या लॉजिकल हो गए, उनकी इंफॉर्मेशन जब अल्टर होती है, मॉडिफाई होती है और अफेक्ट देयर ऑपरेशन। आपके सिस्टम के जो रिसोर्सेस है उनकी इंफॉर्मेशन अल्टर होती है या उनके जो ऑपरेशंस है, डे टू डे ऑपरेशंस, डेली ऑपरेशंस, उनमें जब चेंजेस आने लगते हैं, वो जब अफेक्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक इन्वॉल्व सम मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा और क्रिएशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपका जो डेटा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है या आपने जो डेटा सेंड किया है उसके बजाय और कोई डेटा सेंड हो रहा है, तो उसे बोलते हैं एक्टिव डेटा। We have just discussed that two people are communicating with each other, they are having conversation. While that conversation, whatever data is sent by sender, it is either modified or instead of that data, some other information, some other data has been exchanged to the receiver, then that kind of attack is the active attack. तो active attack में क्या क्या आते हैं? Masquerade is an active attack. Modification of message is an active attack. Repudiation is an active attack. Replay is active attack. Denial of service is an active attack. So now we'll see all these 5 types of active attacks in detail. तो masquerade क्या होता है? तो I will first explain you this diagram. ये diagram आपको visible है? Yes, ma'am. So from this diagram, can you guess what masquerade can be? See, we are having three identities in this diagram: Lily, Bob, and John. They are over the internet, so they are exchanging or they are having some data transfer using internet. And at the same time, one line is shown between Bob and John. Like Bob is pretends to be Lily. तो फ्रॉम दिस डायग्राम आप बता सकते हो कि मस्करेड क्या हो सकता है? Yes, see, whenever the staff are conducting lectures for you for e-computers, तो हमारे पास एक कॉमन मेल आईडी है, ठीक है, और वो कॉमन मेल आईडी का पासवर्ड जो है वो हम सब स्टाफ के साथ शेयर हुआ होता है। तो whenever we are conducting the lecture, we are using the same ID and same password, ठीक है। आपको जब हम गूगल मीट में सबको ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारी पर्सनल आइडेंटिटी वहाँ पे दिख रही है क्या कहीं पे? जो सब्जेक्ट टीचर है उसका आपको यूजर नेम पासवर्ड कहीं पे दिख रहा है क्या? No, ma'am. So this screen you are able to see. So from an account where I am speaking, it reflects you as a T, that it is T computer account. ठीक है, जैसे मैं ले रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट का आपका जब लेक्चर होता है तो वो स्पेसिफिक लेक्चर या स्पेसिफिक लेक्चर टीचर कौन सा है वो आपको पता चलता है क्या? या गूगल ये इस गूगल मीट में नहीं, सबके इसमें टी ही दिखता है और इसी अकाउंट से हम आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो ये क्या हो गया? इट इज अ काइंड ऑफ मैस्करेड। समझ में आ रहा है? अगर आपका यूजर नेम, आपके क्रेडेंशियल्स, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी के पास है तो वो क्या करेगा? मेरे अकाउंट से आपको मैसेज सेंड कर सकता है, मेरे अकाउंट डिटेल्स यूज करके कोई मैलिशियस टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो उसे बोलते हैं मास्करेड। गॉट इट?
Yes, ma'am. जैसे इस पीपीटी में Lily and John, they are having conversation online. So whatever login ID and password this sender is having, those ID and password are present there with the Bob group. And Bob is also communicating with John using the ID and password of Lily. He is pretending to be a Lily and talking with John, where John is not having any idea that he is speaking with Lily or Bob, because the messages are coming from the account of Lily only, but they are sent by Bob and not by the Lily. So this kind of condition is nothing but the masquerade attack. Got it? Yes, ma'am. The next type of active attack is modification of messages. तो मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि whatever data we are sending from sender to destination, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, वो मैसेज मॉडिफाई किया जाता है या रीऑर्डर किया जाता है और सेंड होता है टू द डेस्टिनेशन। जिससे क्या होती है, आपकी मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी चली जाती है, उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसमें जो प्योर कंटेंट था वो तो लॉस हो गया। तो जहाँ पे आपके इंटीग्रिटी पे अटैक होता है, उसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। What it means? It means some of the portion of your message is altered. आप जो मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं उसका डेटा जो है वो अल्टर किया जाता है, या और द मैसेज इज डिलेड और रीऑर्डर्ड टू प्रोड्यूस एन अनऑथराइज्ड इफेक्ट। या फिर क्या होता है, आपने एक जो मैसेज ट्रांसफर किया, उसके बाद दूसरा तीसरा 4-5 मैसेजेस आपने ट्रांसफर किए, तो उसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है कि लास्ट वाला मैसेज पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा। या फिर क्या होता है, आपके जो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं उसमें डिले जनरेट किया जाता है बाय द थर्ड पार्टी। तो इससे क्या होता है, दिस मॉडिफिकेशन इज एन अटैक which attacks on your integrity of original message। तो होता क्या है, आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है उसकी जो प्योरिटी है वो कम की जाती है, उसकी इंटीग्रिटी कम की जाती है। So it basically means that an unauthorized party, it means what, कोई unauthorized party जो है, which not only gain access to data but also spoof the data by triggering the denial of service attack। अभी what denial of service attack that we'll see in next slide। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, ऐसा अनऑथोराइज पर्सन होता है जिसके पास आपके सब आईडी एंड पासवर्ड डिटेल्स है, and he is not only accessing your data but at the same time he is spoofing your data, he is modifying your data and sending it back to the receiver, the fake data। So that kind, जहाँ पे whenever Lily and John are having conversation, what Bob is doing, this content before transmitting to the John, Bob is receiving the content, modifying the content and sending it to John। So whatever Lily is having is not the same content which is received by the John, and that is nothing but modification of the message। Again, it is a kind of active attack। Next we have repudiation। repudiation में क्या होता है कि जब आपके फायरवॉल अच्छे से अपग्रेड नहीं किए जाते, तो आपका जो नेटवर्क है, नेटवर्क में आप जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे, नेटवर्क में जो भी सेंडिंग और डाउनलोडिंग, अपलोडिंग या डाउनलोडिंग वाले जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, तो क्या होगा, जो डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके साथ कोई मैलिशियस फाइल्स अटैच करके वो डेटा सेंड हो सकता है। और एल्स whenever you are downloading some content, तो वो डाउनलोड करते टाइम कोई भी फॉल्स फाइल, फॉल्स डेटा आपकी फाइल के साथ में डाउनलोड हो जाता है और आपके सिस्टम में स्टोर हो जाता है, which causes लॉस ऑफ डेटा, जिससे आपका डेटा लॉस हो सकता है, आपका डेटा करप्ट हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब हम मेल पे लार्ज साइज वाली
फाइल जब किसी को सेंड करते हैं एंड व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू डाउनलोड दैट फाइल, तो वहाँ पे आता है दिस फाइल इज टू बी स्कैन फॉर वायरसेस, ऐसा ऑप्शन आता है वहाँ पे। देखा है आपने कभी जीमेल पे? अगर कोई Yes, ma'am. वीडियो है या ऑडियो है तो वहाँ पे वो आता है। तो वो क्यों आता है? टू प्रिवेंट अस फ्रॉम दिस अटैक ऑफ रिपुडिएशन। अगर किसी ने आपको लार्ज कंटेंट भेजा है तो हो सकता है कि उसने वो जो डेटा अपलोड किया है तो अपलोड करते टाइम इफ that person's system is not having updated firewalls और network securities, तो हो सकता है उसके systems में या network में जो भी viruses है वो फाइल को attach हो सकते हैं and they may be damaged to your system when or if you will download those files in your system। तो वो रेपुडिएशन को अवॉइड करने के लिए वो फाइल्स पहले स्कैन होती है और उसके बाद ही वो डाउनलोड होती है। तो दैट काइंड ऑफ अटैक इज नथिंग बट द रेपुडिएशन अटैक। गॉट इट? एंड सिमिलर इसका एग्जांपल है स्पूपिंग ऑफ ईमेल। आपके स्पैम में मैसेजेस होते हैं, तो स्पैम में आपके जो मैसेजेस होते हैं दोज ईमेल आईडीज विच आर देयर इनसाइड योर स्पैम, दोज आर नॉट फैमिलियर एंड यूज्ड टू विथ यू। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, रैंडमली हमारे पास मैसेजेस आते जाते हैं और वो मैसेजेस को अगर हमने मैसेज में जो कंटेंट है उसको अगर हमने डाउनलोड किया तो दे में हार्म टू अवर सिस्टम। तो दोज काइंड ऑफ ईमेल स्पूफिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रिपुडिएशन। देन नेक्स्ट इज रिप्ले। आपने फ्लडिंग पढ़ा होगा कंप्यूटर नेटवर्क में, पढ़ा था? फ्लडिंग करके एक अटैक था आपके कंप्यूटर नेटवर्क में। क्या होता है? व्हाट इज फ्लडिंग? आपने अभी जो पढ़ा है वो भी हमें याद नहीं, आप सीएन का पूछ रहे हो ना? तो फ्लडिंग क्या होता है, एक ही मैसेज जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हो? टीसीपी यूज़ करते हो एंड यूडीपी यूज़ करते हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या था कि जो टीसीपी था आपका वो कनेक्शन ओरिएंटेड था इसलिए वो सिक्योर था, और जो यूडीपी था वो कनेक्शन लेस था इसलिए उसमें सिक्योरिटी नहीं थी। तो अगर कुछ सिस्टम्स में, कुछ नेटवर्क्स में एट द ट्रांसपोर्ट लेयर इफ दे आर यूजिंग यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो वहाँ पे क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है। और कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होने से हमें पता नहीं चलता कि सेंडर तक इंफॉर्मेशन गई है या नहीं गई है। तो क्या होता है, अगर मैंने इंफॉर्मेशन सेंड की वो सेंडर के पास नहीं पहुँची, and if we are at the distance of, we are at the reachable distance, so we can talk on mobile phones and we can communicate that you have sent message but it is not received by me yet। तो मैं क्या करती हूँ, वही मैसेज 4-5 बार सेंड कर देती हूँ, तब भी वो पहुँचता नहीं है। और जब नेटवर्क क्लियर हो जाता है, जब ट्रैफिक क्लियर होती है, तो जितने बार मैंने मैसेज भेजा है उतने बार वो वहाँ पे पहुँचता है। तो एक ही डेटा उसके मल्टीपल कॉपीज जब रिसीवर के पास जाती है तो उसको बोलते हैं फ्लडिंग। एंड द सेम थिंग इज नथिंग बट रिप्ले। बट इन दिस रिप्ले, दिस मल्टीपल कॉपीज ऑफ मैसेज आर नॉट सेंड बाय द सेंडर, that a copy from the sender is hacked by the third party, and that third party is making some changes inside your message and then sending multiple copies of that same message to the destination। रिप्ले किया जाता है सेम मैसेज, सेम इंफॉर्मेशन, उसे बोलते हैं रिप्ले अटैक। So Lily has sent a message to the John, but at the same time Bob has hacked the message which is sent by Lily. He make modification in that message and resend it to the John for multiple times is nothing but replay attack। Next is denial of service attack। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम
it prevents the normal use of communication facilities. This attack may have specific target. तो डेन्यूल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि आपका जो सर्वर है उसको बहुत सारी फॉल्स रिक्वेस्ट दी जाती है। इससे क्या होता है, आपने जो एक वैलिड रिक्वेस्ट आपके सर्वर को दी है उसका आपको रिप्लाई ही नहीं मिलता। मतलब क्या होता है इसमें, कभी आपने ऐसे देखा है क्या, आपने सिस्टम चालू की और एक ही पॉपअप बार बार आपके स्क्रीन पे आता है, उसको क्लोज करने के बाद ही वो जनरेट होता है, क्लोज करने के बाद भी जनरेट होता है, ऐसे हुआ है आपके साथ कभी? यस मैम। तो उसे बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस। किया क्या जाता है, हम जब कम्युनिकेट करते हैं विद अवर सर्वर, तो हम किस चीज़ के लिए कम्युनिकेट करते हैं, वी वांट सम डेटा एज अ रिप्लाई फ्रॉम आवर सर्वर। लेकिन हैकर को क्या चाहिए कि वो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे तक पहुंचनी नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ फॉल्स रिक्वेस्ट आपके सर्वर को सेंड करते हैं, जिससे आपका नेटवर्क या आपका सर्वर ओवरलोड हो जाए और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप तक पहुंचे ही ना। That kind of attacks are the denial of service attack, where you have sent a request to the server or to the network for particular information, but by the same time another person overload the server or the network by giving number of false requests, जिससे आपका सर्वर स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है और whatever you are requesting you are not getting. That kind of attack is denial of service attack. Then the second type of information security attack is the passive attack. पैसिव अटैक में क्या होता है, आपके जो मैसेजेस है, आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होता, बट आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है, आपका जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको लुक ओवर किया जाता है कि किस टाइप का डेटा सेंड हो रहा है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, so that they can use that way of information changing in some other ways to mislead the company, to mislead the organization. So what is passive attack? Passive attack attempts to learn or make use of information from the system but does not affect the system resources. आपकी जो सिस्टम है, सिस्टम में जो डेटा फ्लो हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको लर्न किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है, बट आपके रिसोर्सेज को अफेक्ट नहीं होता उस चीज़ का। जैसे एक्टिव अटैक में आपका जो डेटा है, आपका डेटा आपका रिसोर्स था, तो उस रिसोर्स में मॉडिफिकेशन करके आपका रिसोर्स आगे शेयर किया गया। वैसे पैसों में नहीं होगा, आपके जो रिसोर्सेज है वो सेफ होंगे, बट आपके रिसोर्सेज में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको लर्न किया जाएगा, उसको यूज़ किया जाएगा। These passive attacks are in the nature of eavesdropping on और monitoring the transmission. आपके डेटा का जो ट्रांसमिशन है उसे मॉनिटर किया जाता है। And what the goal is, इसके behind reason क्या है? The goal of the opponent is to obtain information that is being transmitted. तो information आप transmit कर रहे हो, उसे gain करना is the final motto of this passive attack. There are two types of passive attack: the release of message content and traffic analysis. So what is release of message content? It is any telephonic conversation, electronic mail message, or a transferred file may contain sensitive or confidential information. Okay, whatever conversation, email transfer, or transmission of file we are having, our files, our conversation, our mails may contain sensitive information, confidential information, and we will always like to prevent our information from the opponent. We will always try to protect our information to be protected from learning of that content from this transmission. But if someone is releasing that content, someone is accessing that content, is a kind of release of message content. For example, वो मूवी था, एक कौन सा मूवी था,
क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल क्या होगा इसका? कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसको लीक किया जा रहा है, या कोई ईमेल है उसको हैक किया जा रहा है, कोई फाइल्स हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको एक्सेस किया जा रहा है, जिससे हमारी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लॉस होती है। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? आलिया भट्ट और विकी कौशल वाला एक मूवी था, कौन सा था वो? जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी वॉर्स होते थे, जो भी टेररिज्म अटैक्स होते हैं, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही थी, वो इन्फॉर्मेशन जो टेलीफोन पे एक्सचेंज हुई थी, उस टेलीफोन एक्सचेंज्ड इन्फॉर्मेशन को हैक किया गया था बाय द इंडियन सिक्योरिटी पर्सन्स। सो जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं किया जाता, बट उसको लर्न किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसे बोलते हैं द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। द सेकेंड टाइप ऑफ पैसिव अटैक इज ट्रैफिक एनालिसिस। तो ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है कि आप जो भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप जो भी डेटा एक्सचेंज कर रहे हो, उसे बस ऑब्जर्व किया जाता है। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट में क्या होता है, वो डेटा डाउनलोड हो जाता है, वो डेटा लर्न हो जाता है। लेकिन ट्रैफिक एनालिसिस में उसका बस क्या पैटर्न है वो एनालाइज किया जाता है। सपोज वी हैड अ वे ऑफ मास्किंग इंफॉर्मेशन। जब हम कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो अगर उसको हम सिक्योर करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। मतलब एक्चुअल डेटा जो है उसको हम सिम्बल्स में कन्वर्ट करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, सो दैट इट शुड नॉट बी हैक्ड बाय समवन। तो हम क्या करते हैं, वी हैड अ वे ऑफ मास्किंग इंफॉर्मेशन, इंक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, so that the attacker, even if capture the message, could not extract any information from the message। इससे क्या होता है, अगर अटैकर के पास मेरा मैसेज लीक भी हो गया, तो it will be a collection of symbols, it will not be the actual content, so he or she will not be able to extract information from that message। The opponent who determine the location and identity of communicating host and who observe the frequency and length of message being exchanged। तो आपने इंक्रिप्शन भी कर लिया, इससे क्या होगा कि अटैकर को हमारा मैसेज क्या है वो पता नहीं चलेगा, बट द ओपोनेंट कैन डिटरमाइन आवर लोकेशन, आवर आइडेंटिटी ऑफ होस्ट, एंड ही इज एबल टू ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी कि कौन से कितने बार एक मैसेज सेंड हो रहा है, वो मैसेज की लेंथ क्या है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कैसे होगा। दिस इंफॉर्मेशन माइट बी यूजफुल इन गेसिंग द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस। इससे क्या होगा, विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वी आर परफॉर्मिंग, इट इज़ डेली कॉन्वर्सेशन, इट इज़ मंथली कॉन्वर्सेशन, what quantity of data is exchanged, what is the frequency of changing that data, ये सब जो है वो एनालाइज किया जाता है उसमें। So that kind of attack, passive attack, is traffic analysis। इससे होता क्या है, the attacker, the hacker is just identifying that what is the location, what is the identity of host, कि ये सब एनालाइज करने के लिए ट्रैफिक एनालिसिस वाला अटैक यूज होता है। सो दिस आर दी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स वी हैव। Basically, there are two types, active and passive attack. You may have question in your exam like explain the active attacks in detail or explain the types of active attacks further। तो आपको ये डेफिनेशन लिख के इसके ये जो 5 टाइप्स है वो आपको एक्सप्लेन करने होंगे, और दे में गिव यू द सम टाइप्स लाइक एक्सप्लेन अटैक, एक्टिव अटैक, एंड एक्सप्लेन द मॉडिफिकेशन एंड रिप्ले अटैक। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, यू शुड एक्सप्लेन देम विद द डायग्राम्स। तो टुडे वी हैव सीन द रिमेनिंग security key concepts and security attacks, where there are two types, active and passive।
In active, we have masquerade, modification, repudiation, replay, and denial of service. And in passive, we have release of message content and traffic analysis. So for today, we'll stop here. Let me take the attendance and then we'll stop. It's roll number 1, roll number 2, Present, ma'am. roll number 3, 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, 7, 8, 9, 10. Present, ma'am. Who is this? Roll number 10. 11 to 20. Who is present? 18. Anyone else between 11 to 20? 21 to 30. Roll number 21.